Hello, ma'am. How are you? I'm good. Ritika, how are you doing? Great, ma'am. Great. So yes, today's session, Har Ghar Healthy, the power of regular health checkups, will be beginning shortly. And it's a pleasure that you have joined us again for a live session. And we look forward to an interesting session once again with you. Dear audience, stay tuned with us. Keep joining. Quickly join us as we begin these sessions. इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 15 अगस्त, बट इस बार हमारा फोकस होना चाहिए बीमारी से आजादी। हर घर होना चाहिए हेल्दी। द पावर ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हम सबको पता है। पर हम क्या मेजर्स लेते हैं बीमारियों को प्रिवेंट करने के? क्या हम अपने हेल्थ को लेके उतने सीरियस हैं जितना हम बाकी चीजों को लेके हैं? कभी कभी हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अपने कपड़ों में, लाइफ एंटरटेनमेंट में कर देते हैं, बट अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर मयंका लोधा से, चीफ पैथोलॉजिस्ट, रेड लैब्स। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कैन कीप अस एम्पावर्ड, हेल्दी एंड कीप अस overly fit. Ma'am, we will be beginning this session. And for that, we would request you to tell us, why is regular health checkup so important? Regular health checkup increase your chances to lead a healthy life. And in fact, regular health checkup, I would even go to saying that they increase your life expectancy overall. Because regular health checkups, they save you from untoward health conditions. Because by regular health checkup, you will be able to diagnose your conditions way ahead, way earlier, way at earlier stages than what otherwise when symptomatology would appear. So especially this is important case of chronic diseases, because in chronic diseases the symptoms don't come abruptly. They are so slow and they are so silent sometimes that you may not even know, and you might develop a condition which is not so early. And then when you interrupt and then when you go for intervention, then a lot of time, a lot of money, and a lot of morbidity are associated with them. For example, if you see, you might notice slow weight gain without any changes in the diet. There might be an underlying thyroid condition, or you might feel fatigued. You might not take interest in activities which require energy. So you would think, oh, I don't feel like going, I don't feel like interacting with people. But you might have low hemoglobin, and that's the reason. Because of low hemoglobin, you'll have low oxygen saturation, and this might lead to your so-called disinterest in things. Health condition, but we ignore them in day-to-day lives. So regular health checkups save us from a lot of diseases: hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, thyroid conditions, anemia, so on and so forth. हम क्या करते हैं, अगर हम बीमार होते हैं या हमारे कोई सीरियस जैसे फीवर हो गया या कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं, घर के नुस्खे अपना लेते हैं। हम जाते हैं, कोई काढ़ा बना के पी लेते हैं, या हम जैसे हमारे जो पुराने जमाने से हमारे नानी दादियां बोल रही है, हम उससे फॉलो करते हैं। तो are they safe, and like avoiding health checkups or visiting a doctor, avoiding all that and just relying on home remedies, how safe is that? Actually, what happens, you have to have moderation, and you have to have a sense of कॉमन सेंस जो अपन कहते हैं। ये जो टाइम टेस्टेड होम रेमेडीज है, ये एंटायरली गलत नहीं है। आपको वायरल फीवर है, आपका रनिंग नोज है, आपने अदरक ले लिया, काली मिर्ची ले ली, नो हार्म इन दैट। आपने यू हैव अ स्किन कंडीशन, यू आर यूजिंग टर्मरिक, यू हैव लिटिल कॉफ, मे बी एलर्जिक, आपने मुलेठी ले ली। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर करते जाएं कंडीशन को, कि आपका पेट दर्द है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि कोई एडोलसेंट फीमेल है, सपोज एक गर्ल है 13 ईयर ओल्ड, पेट दर्द शुरू हुआ, ठीक है, आपने फर्स्ट होम रेमेडी दी, अजवाइन दे दी, आपने देखा गैस हो सकती है। आई मीन नो रॉन्ग इन दैट। लेकिन आधे घंटे बाद आप देख रहे हैं कि एब्डोमिनल पेन कम ही नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है, देन आपको मेडिकल कंडीशन या मेडिकल हेल्प लेना ही है। बिकॉज टाइमली इंटरवेंशन नहीं हुआ, शी माइट हैव
ओवेरियन सिस्ट और इवन ओवेरियन टॉर्शन, कुछ भी सीरियस हो सकता है। तो एक्चुअली आपको ना कॉमन सेंस यूज करना है कि कौन सी कंडीशन में जो टाइम टेस्टेड होम रेमेडीज है आपने ले ली, आधा घंटा 1 घंटा, कोई माइनर सा एलिमेंट है आपने ले लिया, नो हार्म इन दैट। दादी नानी ने जो हमको सिखाया वो एंटायरली गलत नहीं है, लेकिन इन रेमेडीज के अलावा जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उनको तो बिल्कुल ही बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के नहीं लेना चाहिए। हम लोग दिन रात ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिसमें मेटल टॉक्सिसिटी होती है। लोग हाई लेवल्स ऑफ आर्सेनिक, हाई लेवल्स ऑफ लेड, मेटल्स लेके आते हैं और उनको इतनी सिवियर रेस्पिरेटरी डैमेज और इरिवर्सिबल डैमेज होता है कई बार, जो कि उन टॉक्सिन्स के कारण हो जाता है। जो आजकल सोशल मीडियाज और मार्केटिंग में अनऑथराइज्ड दवाइयाँ मिलती है, उनको तो बिल्कुल भी मेडिकल कंडीशंस के बिना नहीं लेने चाहिए। होम रेमेडीज टू सम एक्सटेंट, जो छोटे माइनर एलिमेंट्स हैं जो हम एक्सपीरियंस से जानते हैं, उनमें डेफिनेटली आप ले सकते हैं। बट कुछ भी चीज अगर बढ़ रही है या ठीक नहीं हो रही, देन अर्जेंट मेडिकल अटेंशन इज मस्ट। तो वो हमें वी शुड हैव दैट आइडिया कि कब हमें होम रेमेडीज तक लिमिट रखना है और कब हमें मेडिकल हेल्प सीख करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो फॉर बोथ genders, men and female, which are some of these essential tests that both the genders should take? Yes, there is a बैटरी ऑफ एसेंशियल टेस्ट जो कि दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है सेल काउंट, जो कि आप कॉमन लैंग्वेज में हम कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी कहते हैं। वो आपका एक ब्लड काउंट है जो आपका एक बेसिक खाका बताता है कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, आपके डब्ल्यूबीसी लेवल्स क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या है, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पता चलती है। उससे आपके इन्फेक्शंस का स्टेटस पता चलता है, वेदर इन्फेक्शन कोई है तो नहीं। और इवन इन्फेक्शंस का टाइप भी आप डिसाइड कर पाते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा है तो बैक्टीरियल होगा, अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं तो प्रोबेबली ये होगा, प्लेटलेट्स कम है तो प्रोबेबली ये होगा। इस तरह से एमसीवी एमसीएच कम ज़्यादा हैं तो किस टाइप का एनीमिया है, कौन सी डेफिशिएंसी का एनीमिया है। तो एक्चुअली ये एक सिंगल टेस्ट ही इतना बड़ा भंडार है इन्फॉर्मेशंस का कि आपकी एक बार तो पूरी बॉडी और आपके अंदर क्या चल रहा है उसका एक आईना जैसा होता है। दूसरे आपके जो मेटाबॉलिक टेस्ट हैं, जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड फंक्शन टेस्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी जो रोज़ की बॉडी कैसे वर्क कर रही है उसको बताते हैं। आपके एंजाइम लेवल्स बताते हैं, आपकी लिवर की हेल्थ बताते हैं, किडनी ठीक से आपका टॉक्सिन्स निकाल रही है या नहीं वो बताते हैं। दूसरा एक जो कॉमन टेस्ट है वो हम करते हैं थायराइड का, जो TSH लेवल है। तो थायराइड जो मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो थायराइड टेस्टिंग भी करीब करीब सारे हेल्थ चेकअप्स में इंक्लूडेड होती है। सो दीज आर द बेसिक, मतलब बेयर मिनिमम टेस्ट ये होते हैं जो एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप में होनी चाहिए। मान लीजिए किसी को कोई भी हेल्थ कंडीशन, ऐसे क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन नहीं है, बिल्कुल वो हेल्दी एंड फिट है, फिर भी उन्हें हेल्थ चेकअप लेना जरूरी है उनके लिए? हेल्थ चेकअप लेना जरूरी है, डेफिनेटली है, इवन जो हेल्दी है उनके लिए। क्यों? पहला रीजंस कि आप हेल्दी एपरेंटली हैं, एपरेंटली आपको कोई सिम्टम नहीं है, बट अंडरलाइंग डिजीज जो कि स्लो चल रहा है और क्रोनिक है। क्रोनिक मतलब एक्यूट का उल्टा है, एक्यूट में अब्रप्ट होता है सब चीज़ें, क्रोनिक में सब कुछ स्लो डैमेज होता है। तो जो क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है कई बार इतनी स्लो होती है कि एपरेंटली आप हेल्दी फील कर रहे हैं, आप हो सकता है आप हेल्दी नहीं हो। एंड दूसरा जो एक रीज़न मुझे पर्सनली लगता है, अगर आप हेल्दी हैं और आपकी रिपोर्ट सब सही है तो ऑल इज वेल फीलिंग बहुत ज़रूरी है आज के स्ट्रेस वाले माहौल में, कि भैया मैं हेल्दी हूँ, मतलब मैंने अपनी विटामिन भी ठीक है, मेरा सेल काउंट ठीक है, मैं मेटाबॉलिकली एक्टिव हूँ, आई कैन फोकस ऑन माई करियर, आई कैन फोकस ऑन माई वर्क, आई कैन फोकस ऑन माई सेल्फ, आई कैन फोकस ऑन लव वंस। और आपको ये स्ट्रेस नहीं है, यू कैन जस्ट गो एंड गेट द वर्ल्ड, क्योंकि आप हेल्दी हैं। तो ये स्ट्रेस फ्री होना भी ज़रूरी है कि अंडरलाइन कोई हेल्थ कंडीशन आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सो ड्यू टू बोथ दीज रीजंस, कोई भी हो उसको एक बेयर मिनिमम हेल्थ चेकअप एनुअली तो बनता ही है आज के ज़माने में। तो एक और सवाल मैम, कि आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने से के साथ साथ डायग्नोसिस एंड हेल्थ चेकअप्स, दे आर बिकमिंग लाइक दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। तो ये किस तरह से जा रहा है और हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट पीपल इन द लॉन्ग रन? डायग्नोस्टिक
is undergoing a revolutionary change, you know, per day. इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है जो डायग्नोसिस को और ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा सटीक बनाती हैं, और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ रही हैं यू नो टेस्टिंग प्रोसीजर में भी, कि आपकी कन्वीनियंस को डे बाय डे बढ़ा रही है, आपकी इनकन्वीनियंस को कम कर रही है। अब जैसे होम सैम्पलिंग है, आपने ऑनलाइन बुक कर दिया, आपके पास क्वालिफाइड फ्लेबॉटमिस्ट आता है घर पे, वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है जो कि उसमें सॉफ्टवेयर में चली जाती है। तो और फिर ऑटोमेशन हो गया, लैब ऑटोमेशन, हैंड्स फ्री टेस्टिंग होता है जिसके अंदर की ह्यूमन एरर्स बिल्कुल कम होते हैं। हैंड्स फ्री वो रिपोर्ट का ट्रांसफर होता है अंदर, आपके जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनको ऑनलाइन ही आपका सारा रिपोर्ट दिखता है, वो क्लिनिकली कोरिलेट कर पाते हैं। फिर आपके हाथ में जब रिपोर्ट आता है उसमें समरीज होती हैं कि भैया आपके ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। कुछ आपके एडवाइजेस होती हैं, रेफरेंस रेंज डली हुई होती हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर भी जो मशीन्स हैं वो एआई बेस्ड हो गई हैं आजकल। तो कई अच्छे इंटरवेंशन आ रहे हैं जो आपके डायग्नोसिस को सटीक भी बनाते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट, और इनफैक्ट कॉस्ट इफेक्टिविटी भी बढ़ी है टेस्ट की। तो डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प कर रही है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। हम देखते हैं आजकल जैसे ही दिन बीत रहे हैं, पीपल आर रिलाइंग मोर ऑन होम सैंपल कलेक्शन। आज पहले के जमाने में ऐसा होता था, हमें लैब जाना पड़ता था, फिर हम सैंपल वहां पे दे के आते थे, फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमें जाके लैब से अपने रिपोर्ट्स कलेक्ट करके लेके आने पड़ते थे। With this home sample collection coming into being, how safe is it? How safe our samples are, and how is that process? If you can shed light on it. Yes. And are people it is okay for people to rely on home sample collection process? Yes. Gone are the days, gone are the days जब वो जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लाइन में लग रहे हैं, क्यों लग रही है, मतलब अब तो बिल्कुल ही ये खत्म सही हो गया है कि एटलीस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के अंदर होम सैम्पलिंग इज द वे टू गो। होम सैम्पलिंग बहुत ही एडवांस्ड हो गया है आजकल। आपके पास डिस्पोजेबल जो है सैम्पलिंग एपरेटस आते हैं, आपके जो फ्लेबॉटमिस्ट हैं दे आर हाईली ट्रेन। फॉर एग्जांपल अगर आरसीएल के फ्लेबॉटमिस्ट की मैं बात करूं, उनको ये काम से पहले एक अच्छी खासी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उनका इवैल्यूएशन होता है, एंड देन फाइनली वो आपके दरवाजे तक आते हैं। सो दे इंश्योर कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहे, बहुत ही कन्वीनियंट रहे, आपकी यू नो पेन मिनिमल हो। वैसे भी ये प्रोसीजर्स इतने इन्वेजिव नहीं होते, और घर के कंफर्ट में तो ऑल द मोर, यू नो, आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। एज फार एज सैंपल की सेफ्टी का क्वेश्चन है, सैंपल्स आजकल ना बार कोडेड होते हैं, तो वंस दैट बार कोड इज ऑन इट, तो उस सैंपल को मशीन भी अपने आप ही आइडेंटिफाई करती है कि उसको उसमें से क्या टेस्ट लेने हैं, किसका सैंपल है, किसकी रिपोर्ट में जाना है। ये सारा जो प्रोसीजर है ना, ये ह्यूमन फ्री होता है आजकल। तो वो आईडीज का मैच होना और वो सब पुराने जमाने की बात हो गई। आपका सैंपल एब्सोल्युटली सेफ रहता है। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब भी आपके घर पे होम कलेक्शन के लिए कोई आते हैं, तो इट्स योर ड्यूटी कि ऐसा नहीं है कि आपने फास्टिंग के आवर्स कंप्लीट नहीं किए हैं या आपने हिस्ट्री कंप्लीट नहीं दी है। अगर कोई क्रोनिक आपको डिजीज है, जस्ट मेक श्योर कि वो आदमी जो फ्लेबॉटमिस्ट आ रहा है, आप उनको कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ऑफर करें, सो दैट पैथोलॉजिस्ट इन द लैब कैन ऑल्सो कोरिलेट योर रिपोर्ट्स इन अ बेटर वे। या अगर आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन दें। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही सॉल्टी या बहुत ही यू नो फैटी फूड पहले से कंज्यूम करके रखा है एंड देन उसके बारे में यू नो you're not being honest about it, all these things. So वो डॉक्टर से हमेशा सच बोलना है। उसी तरह से जो फ्लेबॉटमिस्ट है उसको भी आपको ऑनेस्टली सैंपल देना चाहिए, जितने आवर्स लाइक एटलीस्ट 8 to 10 to 12 आवर्स फास्टिंग सैंपल देना चाहिए आइडली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए। तो ये सब आपको भी इंश्योर करना होता है, तो रिपोर्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता। जैसे मैंने भी रिसेंटली अपना टेस्ट कराया था, तो आई रिमेम्बर कि उसके पहले वाले दिन जैसे मॉर्निंग में मैंने टेस्ट बुक करा था, बट रात को मैंने भर भर के पराठे उस पर घी डाल के मैंने आराम से पराठे खाए। फिर जब मेरा रिपोर्ट आया तो मेरा एचडीएल लेवल बढ़ा हुआ था। ये क्यों हो रखा है कि लाइक रियली कोलेस्ट्रॉल इतना है?
बट फिर जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि क्या क्या आपने खाया था, क्या था, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। फिर जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि अब आप घी डाल डाल के अगर खाओगे तो फिर आपका एचडीएल लेवल बढ़ा हुआ ही आएगा। एंड फिर देन आई रियलाइज कि ये 12 आवर्स फास्टिंग क्यों बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल चेक कराने से पहले। कभी कभी होता है कि हमने रिपोर्ट टेस्ट कराए, हमें रिपोर्ट्स आ गए, बट फिर वी डू नॉट कंसल्ट एनी डॉक्टर। वी फील कि हम खुद ही कर लेंगे, हम देख तो रहे हैं हमारे पैरामीटर्स। हाउ इम्पोर्टेंट इज डॉक्टर कंसल्टेशन वंस यू हैव योर रिपोर्ट्स इन योर हैंड? The doctor consultation completes the process in a scientific way. Actually आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है कि आपने अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में सोचा, आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑर्डर किया, नाउ यू हैव द रिपोर्ट्स इन हैंड. The final step is also very important, that you need to have a doctor consultation wherever your abnormal reports are concerned. So डॉक्टर है वो ही अच्छे से आपको बता पाएगा कि और मॉनिटर भी कर पाएगा. सपोज कुछ एबनॉर्मल है तो उसका डोजिंग क्या होना चाहिए, मेडिकेशन क्या होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपने क्या करना है. एंड वन मोर थिंग कि आगे की मॉनिटरिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए. अगर जैसे सपोज आपका कोई भी पैरामीटर ऑल्टर्ड है, सपोज क्रैटनिन ऑल्टर्ड है या प्रोटीन्स ऑल्टर्ड है, तो वो नेक्स्ट मॉनिटरिंग कितने दिनों बाद होनी है. और कई सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे ईसीजी हो गया आपका, टीएमटी हो गया, या आपका बोन मिनरल डेंसिटी हो गया. इस तरह के जो एडवांस टेस्ट है ये भी प्रिवेंटिव में आते हैं. वो तो डेफिनेटली आपको जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उन्हीं को दिखा के उनके बारे में ओपिनियंस लेने चाहिए. दैट इज ऑलवेज बेटर. हमारे साथ काफी ऑडियंस जुड़ चुकी है, तो ऑडियंस से पूछते हैं, डियर ऑडियंस, अगर आपके पास कुछ सवाल है तो डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड देन वी विल बी टेकिंग अप योर क्वेश्चंस एंड आंसरिंग देम. एक सवाल आया था फ्रॉम दीपू कर, जो पूछते हैं टेस्ट प्राइस. यू कैन गो टू रेडक्लिफ लैब्स वेबसाइट एंड यू कैन सर्च व्हाटएवर पैकेज यू वांट. आपको जो भी पैकेज चाहिए, जो भी पैकेज आप लेना चाहते हो, आप वहां पे जाओ, हमारे वेबसाइट पे हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी पैकेज है जो आपको फिट करती है, आप वो ले सकते हो. इनके इस सवाल से ना मेरे को और एक सवाल आया है पूछना है आपसे कि हम जब ये वेबसाइट पे जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के, या तो ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं. कभी कभी फुल बॉडी पैकेजेस में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं. हमें पता नहीं चलता कौन सा पैकेज हम चूज करें. How do we understand which is the best package that will fit us the best? Yes, I totally agree with you. अभी बाढ़ है चॉइसेस की. आपको चॉइसेस बनानी पड़ती है बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ऑल्सो बिटवीन द टेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर. सो फर्स्टली जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका वो बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए. प्रेफरेबली वो एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब होनी चाहिए. नॉट एनएबीएल सर्टिफाइड बट एनएबीएल एक्रेडिटेड, not NABH certified. Okay, so NABL accreditation is the highest level of quality. आपको preferably वो lab choose करनी है first and foremost. Then you have to see कि कौन सा पैकेज आपने चूज करना है. उसके अंदर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे कि कॉस्ट, आपकी एज और आपकी वर्क लाइफस्टाइल कैसी है, उसके हिसाब से, या आपका सेक्स कैसा है, दोनों मेल फीमेल है, उस हिसाब से आपको चूज करना है. जैसे कि बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल, या जो हमने पहले बात किया सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल एंड थायराइड, तो बेसिक टेस्ट है ये. एंड ऑल्सो यूरिन, आई वुड लाइक टू ऐड इट. ये तो बेयर मिनिमम टेस्ट है. बट इन टूडेज लाइफस्टाइल इट इज वेरी एडवाइजेबल टू गो फॉर विटामिन डी एंड B12. These are the basic vitamins जो कि हमारी वाइटैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे वाइटामिन्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए आपके हेल्थ चेकअप में. इसके अलावा अगर आप एजेड हैं, आप सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आपने जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हो गया ओल्ड एज के लिए, या जो मिडिल एज और एल्डरली फीमेल है इनके लिए पैप टेस्टिंग हो गया, आपका ब्रेस्ट का मैमोग्राफी हो गया, आपका ईसीजी हो गया, आपका बोन मिनरल टेस्टिंग हो गया. तो मिडिल एज में जाके ये थोड़े से एडवांस टेस्ट चूज करने चाहिए जिसमें ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव होता है इंक्लूडिंग वाइटामिन्स. इसी तरह आपकी अगर कोई पर्टिकुलर अंडरलाइंग डिसऑर्डर ऑलरेडी है तो उसको दिमाग में रख के आपको पैकेजेस चूज करने पड़ेंगे. सो बेसिकली ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच है. सो उसका कंसल्टेशन भी अवेलेबल है. अगर आप कॉल करते हैं टेलीकॉलिंग पे लैब्स में, तो आपको जनरली एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है कि आपके लिए कौन सा पैकेज बेस्ट रहेगा.
Now, somebody who's completely healthy, fit, and fine, how frequently should that person go for health checkup? आई थिंक एनुअल हेल्थ चेकअप इज वेयर मिनिमम, क्योंकि एक साल का डिफरेंस ऐसा होता है जब कोई बीमारी पहले नहीं है वो भी अराइज हो सकती है, और अगर कोई पहले बीमारी है तो हम उसको अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं कि उसका लेवल क्या चल रहा है पुराना बेसलाइन रिपोर्ट से अब उसकी स्थिति क्या है। तो आई थिंक एन एनुअल हेल्थ चेकअप तो बेयर मिनिमम है ही है। लेकिन अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी आपके हेल्थ चेकअप में आती है तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर का मॉनिटरिंग शुड बी मोर फ्रिक्वेंट, नॉट एनुअल। बट जैसे HbA1c आपका रेस्ड है तो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में वापस आइए। अगर क्रेटिनिन या यूरिन एल्ब्यूमिन में इश्यू है, डेफिनेटली आपकी मेडिकेशन, तो मेडिकेशन के इफेक्ट को देखने के लिए वापस कराना पड़ता है। सेम होल्ड्स फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया एंड लिवर डिजीज। तो फ्रीक्वेंसी तब ऑल्टर होगी अगर कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, अगर नहीं है देन एनुअल इज इनफ। So annually once in a year आपको हमेशा हेल्थ चेकअप ले लेना चाहिए to know how you are, how fit, how healthy you are. After all, बीमारी से लेना है आजादी। तो कभी कभी जैसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें वो इंजेक्शन से, हाँ, that one prick is very very scary for me, तो I am really very frightened। तो जैसे वो लोग घबराते हैं देन दे आर लाइक कि नहीं नहीं हेल्थ चेकअप हम अवॉइड करते हैं, कर लेंगे जब कोई बीमारी होगी तो हम कर लेंगे। So what tip do you want to give to such people who are scared of that needle or that prick? And how can we overcome that fear? See, you have to, overcome that fear of unknown, fear of bad news, fear of XYZ। ये सब चीजें आपको ओवरकम करनी पड़ेगी। यू हैव टू हैव दैट मेच्योरिटी इन योरसेल्फ, बिकॉज आजकल के जैसा एनवायरनमेंट है, जितना पोल्यूशन है, जितना स्ट्रेस है, वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, ऑल दीज थिंग्स, यू ऑलरेडी हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन लाइफ। अब आप एक कम से कम एक छोटा सा ये वर्क है जो आप अपने लिए कर सकते हो बेयर मिनिमम कॉस्ट में भी, आजकल एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी है। नाउ यू हैव टू हैव दैट मेच्योरिटी कि भाई ये इतने सारे लोग ले रहे हैं और डेफिनेटली इतनी कन्वीनियंट से ले रहे हैं, तो आपने भी आगे जाके वो चीज़ करनी है। यू हैव टू लीव दैट फियर ऑफ अननोन साइड करके एंड यू हैव टू गो फॉर इट। दैट्स द नीड ऑफ द आवर एक्चुअली। So they say ना डर के आगे जीत है. So it's like for good health you have to overcome that fear. So ma'am, there's a question which has come. Ma'am, can you please share some lifestyle tips to stay healthy? Yes, definitely. लाइफस्टाइल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं एंड टू सम एक्सटेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस एज वेल। उसमें आपका जो हेल्थ का अच्छा स्टेट है वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। यू हैव टू ईट हेल्दी, यू हैव टू स्टे फिट, यू हैव टू एक्सरसाइज, you have to have a certain level of activity during work also, and you have to stay away from unhealthy habits। सो ये सारी चीज़ें तीनों मिलके आपको एक अच्छे ट्रैक पे रखती है, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है ना। ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी रहती है तो हैप्पीनेस के पीछे ही आ सकती है। अगर हेल्थ नहीं है देन यू कांट बी हैप्पी। सो फॉर अ हैप्पी लाइफ यू हैव टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे पहले आपका जो न्यूट्रिशन है, जितना ज़्यादा प्लांट बेस्ड है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। दिस न्यूट्रिशन इज वे हेल्दियर देन द अदर वे राउंड। फिर आपका जो एक्सरसाइज रूटीन है, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, 5 days अ वीक, वो आपका मिनिमम एक्टिविटी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आपका एज एंड एवरीथिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह की वो एक्टिविटी होनी चाहिए, पर वो मिनिमम बेयर मिनिमम है ही है कि आपको एक्सरसाइज करना है अपना। देन वर्क के प्लेस पे भी आपको स्ट्रेस फ्री होने के लिए स्मॉल लिटिल एक्टिविटीज, योगा ड्यूरिंग वर्क ऑल्सो, ये सब भी ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अनहेल्दी चीज़ें टू मच ऑफ फ्राइड, टू मच ऑफ फूड दैट इज़ नॉट मेड एट होम, बाहर का खाना, ये सब चीज़ें कम करनी पड़ेंगी एंड ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। So, मैम आजकल हम देखते हैं कि NCDs बहुत कॉमन हो गई है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत कॉमनली इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है। So what are some of these common NCDs that we should be aware of and इनकी क्या diagnosis है?
क्या ट्रीटमेंट है, क्या मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए? So let me tell you what is communicable and what is non-communicable. Communicable में generally infectious diseases आते हैं जो एक person से दूसरे person को communicate होते हैं through various vectors and through various methods. जैसे कि हम देखते हैं viral fever हो गया, फैल गया, COVID हो गया, फैल गया, मलेरिया हो गया, फैल गया, TB है जिस तरह से. All these come under communicable disease. Non-communicable diseases इनके अंदर वो diseases आते हैं जो कि एक से दूसरे आदमी में ट्रांसफर नहीं होते. ठीक है, जैसे डायबिटीज, अगर एक को डायबिटीज है तो घर में सबको डायबिटीज हो ऐसा जरूरी नहीं है. या आपका हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स हो गए, आपका थायराइड डिजीजेस हो गए. ऑल दीज कम अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है एंड इनफैक्ट इंडिया हैज़ बिकम गढ़ हो गया है इंडिया पूरे वर्ल्ड का नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में. इंडिया इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दीस डेज, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा न्यूट्रिशन, हमारा जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, ऑल दीज जो हमारे देश में प्रेवलेंट है, ये सब ने हमें कैपिटल बना दिया है. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में हेल्थ चेकअप और आपका हेल्थ की तरफ आपका ध्यान वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बचाएगा नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीज से. लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट इन ऑल दीज डिजीजेस. बोलते हैं कि इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम विद इन. ऑब्वियसली आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स लेते रहना चाहिए टू नो हाउ योर बॉडी इज फंक्शनिंग, बट अपनी वो मॉडिफिकेशंस, इट ऑल स्टार्ट्स विद इन. अपनी रूटीन को, अपनी लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज कर पाए तो आई थिंक पीपल विल बी हेल्दी. एक मैम एक सवाल आया है. आई ऑफन फील बॉडी एक्स. मैम कैन यू प्लीज शेयर सम टिप्स टू रिलीव बॉडी एक्स? See, body aches can have various reasons, underlying condition which can cause body ache. First and foremost and most common is you might be suffering from some viral illness जो कि इस सीजन में prevalent है. Viral illnesses में fatigue और body ache बहुत ही common है, but they go in 2 to 4 days. आप एक simple paracetamol या उससे भी चल जाते हैं. But then body aches can be due to your neurogenic pains can be of many types and neurogenic pains are also a common cause. आपकी vitamin B या vitamin D deficiencies है या आपकी bone mineral densities में कुछ issues हैं, वो भी आपको एक लंबे टाइम तक body aches दे सकते हैं. So it depends कि आपको किस cause की वजह से body ache है, क्या underlying condition है और किस कारण से है. अब इस चीज़ का diagnosis करना बहुत important है. You have to go and get yourself diagnosed firstly कि what is the underlying cause of your body ache, and then obviously once the diagnosis is accurate, management is not an issue. तो बहुत बार ऐसा होता है कि people suffer, they try this medicine, that medicine, they do not go for appropriate diagnosis, they do not go for body checkups, health checkups, and फिर उन्हें पता ही नहीं चलता, वो medicine pop in करते रहते हैं. So that also can have an adverse effect on the body. जैसे कि अनीमिया है, अनीमिया बहुत ही कॉमन कॉज है फटीग बॉडी एक का, जो कि आपका हिम्मत कम है, आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी ही कम है, तो यू टेंड टू गेट फटीग, यू टेंड टू हैव बॉडी एक्स वेरी फ्रीक्वेंटली. छोटा सा काम किया आप थक गए, आपका ये दुख गया, वो दुख गया. तो बेसिकली क्या है कि जो कॉमन डेफिशिएंसीज है वो तो आपने सबसे पहले रूल आउट करनी है, और वो ईजीएस्ट है. आपने डेफिशिएंसी रूल आउट करनी है, सप्लीमेंट्स लेने हैं, यू विल हैव अ वेरी बेटर स्टेट ऑफ हेल्थ by just this one step. I see a lot of our audience who joined us, they're asking us about full body checkups. Yes, you can go to our website, Redcliffe Labs, and you can download our app and you can check about the different packages that we have. We offer a lot of different curated packages on full body checkups. So you can avail those checkups for yourself, depending on what are your, as ma'am has already said, depending on your age, gender, health concerns and conditions, you can avail the best package that fits you. हमारा भी offer भी Independence Day का special offer भी चल रहा है, तो you can go to our website and avail those offers. So there's one more question, ma'am. Ma'am, I have been having severe hair fall. Is there a test to know what is wrong? See, for hair fall के लिए hair fall में भी बहुत सारी underlying conditions है, but yes, again, deficiency disorders are a very very common cause of your hair fall, and serum ferritin test that you should definitely go for along with your complete blood count.
सीरम फेरिटिन आपकी आयरन लेवल्स को बताता है, जो कि आपकी हेयर की हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है. यू कैन गो फॉर दीज टू बेसिक टेस्ट, सीबीसी एंड फेरिटिन, टू जस्ट इंश्योर कि एटलीस्ट ये दोनों अपनी प्लेस पे है. देन ऑफ कोर्स देर आर बैटरी ऑफ टेस्ट कंसल्टेशन के बाद में जो आप ले सकते हैं किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से. Now, often we see that women have a lot of health concerns as they age. बहुत सारे जैसे बीमारियां especially women को जकड़ लेती हैं. So, are there any specific tests that women, as they age, they should? It's a mandate that they should take those tests Yes, to ensure their overall well-being. there are some diseases which are especially common in women. Like if you know, anemia is especially common in women. Diseases of bone mineral density, मतलब osteoporosis होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बिकॉज एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स में होते हैं. इसके अलावा इवन एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस ये भी ज़्यादा फीमेल्स में होती है. आईबीडीज है, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं. सो इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज फार मोर देन मेल्स, जो कि ड्यू टू आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो भी बनावट है उसकी वजह से, या इनफैक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीमेल्स में स्मॉल यूरेथ्रा होता है तो उनको यूटीआईज की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. तो फीमेल्स डेफिनेटली ज़्यादा डिजीजेस होते हैं, कुछ तो स्पेशली जो कि फीमेल्स में ही पाए जाते हैं. सो डेफिनेटली फीमेल्स को, और फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं. फीमेल्स को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, टू सी दैट दे आर फिट, उनके कंप्लीट ब्लड काउंट्स ठीक हैं, हीमोग्लोबिन ठीक है, उनके लिवर एंजाइम्स ठीक हैं, उनके वाइटामिन्स अपनी प्लेस पे हैं, उनके यूरिन वगैरह की कोई इन्फेक्शन इशू नहीं है. तो ये सारे जो बैटरी ऑफ टेस्ट है फीमेल्स में बेसिकली वाले सारे होने चाहिए. बट इन द मिडिल एज यू नीड टू हैव अ पैप टेस्ट टू स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, एंड टू हैव अ मैमोग्राम टू स्क्रीन फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स. इसके अलावा एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वो भी बहुत ज़रूरी है, टू सी दैट थिंग्स आर इन प्लेस. So all these three, and also BMD, bone mineral density test, a very must test for all females to see the bone mineral density. So ये test specially females के लिए ही होते हैं, और middle age, post 40, तो every female should go for it definitely. जब हम अभी वुमेन की बात करें तो we cannot leave the men out there. So what are some of the essential tests that men should also take? Men में जो है कार्डिक कंडीशंस बहुत कॉमन है, तो जो ECG है, आपका TMT है. इसके अलावा जो आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, जो कि आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है. ये 3 टेस्ट हैं जो कि मेल्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. ऑल मेन above middle age should go for these tests also. Now, if long run, like if you keep checking, taking health tests and health checkups, in the long run, do you think that they save health cost? Definitely. Save the cost? Yes, definitely. Because if you start early on, and if you know that there's any underlying condition already, then these health checkups, they mitigate the need of extensive medical intervention in future. Definitely they save you from hefty bills of hospitals. So health checkup is a very nominal small investment, which when done timely will save you from लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉस्टिंग. बिकॉज आपका जो हॉस्पिटल स्टेज है, आपका पहले से डिजीज डायग्नोस, देन इट विल सेव यू फ्रॉम रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन दैट आर बाउंड टू अकर इन फ्यूचर. सो डेफिनेटली आपकी पॉकेट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, आई शुड से, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, क्योंकि वो आपको किसी भी अनटूवर्ड मेडिकल कंडीशन से बचाते हैं. So, ma'am, what message on this occasion of Independence Day, what message would you give to our audience so that they stay healthy, बीमारी से आजाद रहे वो, और हर घर बने healthy, and give them a message around the power of health checkups? See, health checkups, as I said, health checkups बहुत necessary है आपको, आपकी चांस बढ़ाने के लिए कि आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा काम तभी कर सकेंगे, हम अच्छा करियर तभी अपना सकेंगे. वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर लव्ड वंस वेरी एफिशिएंटली only and only when we ourselves are healthy. And when we talk about the country, आपका पूरा कंट्री का प्रोडक्टिविटी तभी अच्छा होगा
जब वो पॉपुलेशन हेल्दी होगी तभी जाके वो प्रोडक्टिव होगी. एक अनहेल्दी पॉपुलेशन कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती. हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा अगर हेल्थ स्टेटस ही अच्छा नहीं होगा. सो गवर्नमेंट या आप देख लें कि जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सब भी हेल्दी नेशन के लिए ओरिएंटेड हैं. तो पर्सनली भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम में से हर एक और हमारी फैमिली का हर एक मेंबर और हमारे आसपास के को वर्कर्स सभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्थ ओरिएंटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें. सो दिस इज माय ओनली मैसेज. You should be healthy. You should make your country healthy. Then only together we can go ahead. Exactly. A healthy nation is a powerful nation. So this Independence Day, all of you should avail the special discount that we have on Redcliffe Labs packages and get yourself tested. Stay healthy, stay fit. Karo bimari ko bye. It's very, very important to say goodbye to diseases and stay healthy. Thank you so much, Dr. Manka, for joining us. And I'm sure whatever insights you've shared about health checkups, that is going to benefit our audience. And they are going to take this healthy measure of getting themselves tested this Independence Day. Thank you so much for joining us.